Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। सबको स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। What is expected to be the last of your भगवद गीता सेशंस। तो आज बहुशः आपका ये आखिरी भगवद गीता सेशन रहेगा, और अगले हफ्ते से हम, और जब भी मुझे समय मिलेगा बीच बीच में, अगले हफ्ते रविवार से, रविवार के दिन शाम को हम नया एक श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। वी विल स्टार्ट ए न्यू सीरीज. I'm still deciding whether it's going to be Srimad Bhagavatam in full, like a story. We'll read the shlokas and the translations, or we will be doing only the shlokas of prayers from Srimad Bhagavatam, which itself is voluminous. About 320 prayers have to be covered, which we will do shlokas and translations. We may not include purports because it's going to become too exhaustive if we do that. Anyway, I'm trying to consult my seniors also, and according to their advice, we will go ahead. There are also other avenues we are looking at. Okay, coming back to the topic on discussion. So, till now, Krishna concluded his final instructions of Bhagavad Gita. कृष्णा ने अपने अंतिम उपदेश भगवत गीता का जो सार है, सारांश है, उन्होंने अर्जुन को बताया। और अर्जुन का क्या रिस्पॉन्स था उस बोधन के बाद? व्हाट वाज अर्जुनास रिस्पॉन्स? वी स्टडीड दिस। फिर हमने देखा कैसे कृष्ण को शरण में जाने, कृष्ण की शरण में जाने के लिए कृष्णा हमें चार चीज करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। कृष्णा enthuses us, instructs us to do four things, which by which he means surrender, which we covered in the last session as a revision. So today we'll straight away start with uh, the last three shlokas which remains to be discussed. So what has happened now is uh, Sanjaya has started describing his experience of what he went through uh, while uh, Bhagavad Gita was being discussed between Krishna and Arjuna. तो अर्जुन और कृष्ण के संवाद को सुनते हुए संजय के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, क्या उनको महसूस हुआ, क्या लगा उनको, वो व्यक्त कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। सो यूज टू वर्ड्स, अद्भुतम, वंडरफुल संवाद। ये संवाद जो था अद्भुत संवाद था। रोमहर्षण, आई वाज completely thrilled listening to this conversation, a divine conversation, a wonderful conversation between Krishna and Arjuna. And he gives us the specific instruction that how he was able to hear to Krishna by the mercy of his spiritual master. तो यदि हमें कृष्णा का बोधन, प्रवचन, इंस्ट्रक्शन सुनने को मिल रहा है,
इसका मतलब ये है कि ये हमारे गुरु का आशीर्वाद है। इट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ our guru. By the blessings of our guru only we are able to listen to Bhagavad Gita. Otherwise no one can listen to Bhagavad Gita if he is not blessed by his guru. So he continues, Sanjaya continues, he is addressing Dhritarashtra, so he is telling, Rajan samsmritya संवादम इदम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम रुष्यामि च मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुर् बार बार रुष्यामि. तो ही इज गेटिंग प्लेजर बाय सिंपली थिंकिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन. अभी तो संवाद बंद हो गया, लेकिन उसके बारे में सोच के सोचते सोचते रुष्यामि च मुहुर्मुहुः, तो बार बार रिपीटेडली ही इज टेकिंग प्लेजर. तो ये एक परिवर्तन हमारे अंदर भी आना चाहिए कि भगवत गीता को हम एक टेक्स्ट बुक की तरह ना पढ़े. जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिलीजियस डिपार्टमेंट है, उनको भगवत गीता, प्रोफेसर को भगवत गीता कंठस्थ आता है, लेकिन भक्ति भाव नहीं है उनमें. सो ही is familiar with Bhagavad Gita shlokas, but he does not know the Bhagavad Gita shloka. तो हमें ये सोचना नहीं कि मुझे 700 श्लोक भगवद गीता कंठस्थ होना है. कंठस्थ से ज्यादा हमें हृदय के अंदर लेना है भगवद गीता का इस बोधन को, और हमारे जीवन में गुरु के मार्गदर्शन से हमें इसको लागू करना है. So, Sanjay is telling here, O king, Rajan, as I repeatedly recall, बार बार मैं इसको याद कर रहा हूँ. This is how a devotee also should do. He should contemplate. He must read Bhagavad Gita shlokas, and throughout the day he must contemplate. And a real devotee will feel Rishyami cha muhu muhu. So, uh, I recall this wondrous and holy dialogue. Samvadam imam adbhutam, wondrous, punyam. So that is holy. It's a dialogue. तो संवाद किसके बीच हो रहा है? केशव और अर्जुना. केशवार्जुनयो पुण्यम. आई टेक प्लेजर बीइंग थ्रिल्ड एट एवरी मोमेंट. तो मुझे इसके बारे में बार बार सोच सोच के मुझे आई एम गेटिंग अ थ्रिल, दैट इज I'm getting pleasure by repeatedly remembering. We'll move on to the next sloka also, before we go to the concluding sloka. Tacca samsmritya रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन रुष्यामि च पुनः पुनः. मुहु मुहु पुनः पुनः, बार बार. पहले तो संवाद के बारे में वो बार बार याद कर रहा है, फिर एक और चीज वो बार बार दृश्य कर रहा है, बार बार वो उसकी स्मरण कर रहा है. किसकी? ओ किंग, व्हेन आई रिमेम्बर द वंडरफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो रूपम अत्यद्भुतम हरे है. तो अति अद्भुत रूप हरि कृष्णा का रूप व्यास प्रसादात श्रुतवान, देखने को भी मिला मुझे, क्योंकि मुझे आंखों देखा हाल देखने को मिला. तो मैंने केशव को देखा, केशव का रूप अति अद्भुतम हरे. तो संस्मृत्य रिमेम्बरिंग एंड रिमेम्बरिंग, पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन, क्या हो रहा है? रुष्यामी, ही इज टेकिंग प्लेजर. सो द वंडरफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा, I am struck with even greater wonder. विस्मयों में महान राजन. तो सुन के सुनते मुझे हर्ष हो रहा है, और भगवान के रूप के बारे में सोचते सोचते उससे ज्यादा मुझे हर्ष हो रहा है. ये दर्शन का लाभ है. जब आप आते हो चंद्रोदय मंदिर और राधा वृंदावन चंद्रा का जो दर्शन करके आंखों में भर के लेके जाते हो, पूरा दिन उसके ऊपर आपको याद करना है. संस्मृत्य स्मृति. स्मृति मीन्स टू रिमेम्बर. संस्मृत्य, अच्छी तरह आपको
स्मृति करना है बार बार, संस्मृत्य संस्मृत्य, पुनः पुनः। तो दैट इज हाउ द दर्शन शुड बी। जब आप, ऐसा नहीं कि 1 मिनट का दर्शन, लघु दर्शन नहीं करना चाहिए। पूरे भगवान राधा वृंदावन चंद्रा को आपकी आंखों में भर के, हृदय में उतार के आपको जाना है। पूरा दिन उस अद्भुत रूप हरि का, राधा वृंदावन चंद्रा का, आपको पुनः पुनः संस्मृत्य संस्मृत्य करना है। सो इंस्ट्रक्शन इज बीइंग गिवन बाय संजय, हाउ वी मस्ट हियर एंड हाउ वी मस्ट हैव दर्शन ऑफ द लॉर्ड। आई रिजॉइस अगेन एंड अगेन, रुष्यामि च पुनः पुनः। सबको, सबको आनंद चाहिए, एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस। हियर इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। हियर भगवद गीता इन द मूड ऑफ डिवोशन, have darshan of the Lord in the mood of devotion, then rishyami, you'll be happy always. This is the secret of happiness. So we'll go to the purports of this two particular shlokas and we'll come back to the concluding shloka. Raj, so the understanding of Bhagavad Gita is so transcendental that anyone who becomes conversant with the topics of Krishna and Arjuna becomes righteous. तो भगवत गीता को केवल पढ़ने से, सुनने से एक व्यक्ति सारे सुर, सुर मतलब डेमी गॉड, देवतास, उसका गुण वो पा लेता है। ही बिकम्स लाइक ए डेमी गॉड। एक देवता का क्या गुण होता है, वो सारे गुण उस व्यक्ति में आ जाता है भगवत गीता का श्रवण करने से या पठन करने से। It becomes conversant with the topics, he becomes righteous. He cannot forget such talks. तो बार बार कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कृष्णा इज सो अट्रैक्टिव, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, his instruction is also attractive, his form is also attractive. So naturally we will think of it again and again. This is the transcendental position of spiritual life. तो आध्यात्मिक जीवन का ये एक स्तर है। दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ spiritual life. What is that? The transcendental position. What is the transcendental position? We're always righteous and rishyami. We're always happy. Prabhupada says if you are not happy in your life after coming to devotional service, that means you are not at all doing devotional service. You are doing some work. You're doing work for Krishna. You're not doing service for Krishna. Krishna conscious devotee is always happy because he knows Krishna is in control. Whether it is दुखा सुखा, मेरे जीवन में दुख सुख दोनों को भगवान ही लेके आ रहे हैं। कुछ कार्य है, कुछ कारण है। तो मेरे मालिक कृष्णा चाहते हैं कि मैं इस दुख को भोगूं, क्योंकि मुझे कुछ सीखना है इससे, वो मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ ए डिवोटी। फिर वो सोचेगा मुझे बहुत सारे दुख आने वाला था, लेकिन कृष्णा ने अपनी दया से उसको इतना छोटा दुख दे दिया मुझे, ताकि मेरा कर्म वो उससे मिट जाए और मैं कुछ सीखूं, एंड आई नॉट बिकम लैक्स इन डिवोशनल सर्विस। सो वन हु हियर्स गीता फ्रॉम द राइट सोर्स, गीता बट फ्रॉम द राइट सोर्स, श्रवण करना चाहिए लेकिन स्रोत, स्रोत का मतलब द सोर्स शुड बी very much in devotional line and directly from Krishna. When you hear it from a pure devotee, you are also hearing it directly from Krishna. जब हम भगवत गीता एज इट इज यथा रूप रूपा जी का पढ़ते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, तो हम सीधा संवाद कृष्णा से कर रहे हैं। कृष्णा इज स्पीकिंग टू अस। सो इफ यू वांट कृष्णा टू स्पीक टू यू, then you must understand Bhagavad Gita through the medium of a pure devotee like Srila Prabhupada. Otherwise, it is like reading Bhagavad Gita. He attains full Krishna consciousness. तो कृष्ण भक्ति की जो पराकाष्ठ स्थिति है, वो पाने के लिए केवल भगवत गीता का अध्ययन करने से वो हो जाएगा, भक्ति भाव से, नॉट विथ स्कॉलरली एटीट्यूड। मुझे 700 श्लोक कंठस्थ, मैंने बोला कंठस्थ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको हृदय में
हृदय के अंदर बसना चाहिए। द रिजल्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज दैट वन बिकम्स इंक्रीजिंगली एनलाइटेंड। तो मोक्ष के पथ पे वो आगे बढ़ता जाएगा, और ज्ञान प्रकाश और ज्ञान वर्धन होगा। ही एंजॉयज अ लाइफ विथ थ्रिल। तो ऋष्यामी, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, रीड भगवत गीता, chant Hare Krishna mantra, do things associated with Krishna, serve Krishna. All this is the same thing. It is going to give us the same effect. Not only for some time, but every moment of our lives. लोग बोलते हैं हाँ मैं जाता हूँ रोज 1 घंटे 2 घंटे सेवा करता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे हमें सीमित रहना नहीं चाहिए। गोलोक वृंदावन धाम जाके कौन सा हम फैक्ट्री जाने वाले हैं, कौन सा दुकानदारी संभालने वाले हैं। वो लोग वृंदावन जाके केवल भक्तिमय सेवा करना है, भगवान भगवान का। सो सो वी मस्ट नॉट बी पुट इन फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस दैट मैं 2 घंटे सेवा कर रहा हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो 24 घंटे में आपने 2 घंटे सेवा किया, बाकी 22 घंटे आपका अपना सेवा चल रहा है खुद के लिए। बट यस, we're in the material world, lot of things to be taken care of. So as long as Krishna keeps us in this position, we must keep doing our duty diligently. कर्तव्य निभाना चाहिए, और जैसे जैसे कृष्णा हमारे भक्ति का पथ को खोलते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हमें सेवा में लगाएंगे, तो हमें कोशिश करना है कि दिन के बहुत सारे समय, सारा समय नहीं तो बहुत सारा समय, और जब भी मैं फ्री रहता हूँ, फ्री बनना पड़ेगा मुझे, इस मंदिर में आके प्रभुपाद जी के मंदिर में सेवा करना है। So it appears that Sanjay also by the grace of Vyasa could see the form of Krishna. विश्व रूप देख लिया, विष्णु रूप देख लिया, चतुर्भुज द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर कृष्ण रूप उन्होंने देख लिया। और उन्होंने क्या वर्णन किया, अति अद्भुतम रूपम, very very wonderful form of Krishna I saw. It was exhibited to Arjuna only, yet some great devotees could see the form of Krishna. तो ही वॉज, दिव्य चक्षु किसको दिया था, कृष्णा ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 11वें अध्याय आते आते उन्होंने दिव्य दृष्टि का प्रदान किया। लेकिन गुरु प्रसाद से संजय को भी पहले से ही दिव्य दृष्टि मिल चुका था। हाँ, सो he was one of the great devotees of the Lord. So, and he is considered to be a powerful incarnation of Krishna, Vyasadeva, और उसका शिष्य भी उतना ही होनहार संजय। Vyasa disclosed this to his disciple Sanjaya, who remembered that wonderful form of Krishna exhibited to Arjuna and enjoyed it repeatedly. कृष्ण का जो रूप है, it is something that can be relished always. आनंदाम्बुदि वर्धनम, कृष्ण नाम आनंदाम्बुदि वर्धनम, कृष्णा का सेवा आनंदाम्बुदि वर्धनम, कृष्णा का प्रवचन बोधन आनंदाम्बुदि वर्धनम, हरे कृष्ण महामंत्र आनंदाम्बुदि वर्धनम, दर्शना कृष्णा का आनंदाम्बुदि वर्धनम, जितना देखेंगे उतना बढ़ता जाएगा आनंद। सो नाउ कंक्लूजन कम्स फॉर द भगवद गीता। पहले प्रश्न का उत्तर, मान लीजिए कि पहले प्रश्न का उत्तर, पहले श्लोक का जो प्रश्न पूछा, तो उसका उत्तर अभी संजय देने वाले हैं। द कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता। तो व्हाट इज दिस कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता? द मोस्ट फेमस श्लोका, हम बोल सकते हैं ये भगवद गीता का सारांश है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय has given his conclusion। क्या बोल रहा है? यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे योग के ईश्वर योगेश्वर कृष्ण भगवान है, यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जिस जगह पे भगवान के भक्त है होनहार, धनुर्धरा पार्थो धनुर्धरा, तो
वेर एवर देर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ मिस्टिक्स, जहां पे भी कृष्ण योगेश्वर है स्थित, एंड वेर एवर दिस अर्जुना, भक्त अर्जुन, जैसे भक्त पार्थ, द सुप्रीम आर्चर धनुर्धरा होनहार, स्किल्ड, ready to do service for the Lord, skilled to do service for the Lord. There will also certainly be opulence. Tatra Shrir Vijayor Bhutir Dhruva Nitir Matir Mama. तो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर? कृष्ण रहेंगे, और जहां पे कृष्ण के भक्त रहेंगे तो वहां पे शाश्वत रूप से क्या निवास होगा? तो तत्र श्री ही, तो देर सर्टेनली विल बी ओपुलेंस। क्यों? वहां पे ऐश्वर्य क्यों रहेगा? क्योंकि माधवा है कृष्णा, उनकी पत्नी श्री देवी, लक्ष्मी जी वही निवास करती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं प्रभु जी। कृष्णा, लक्ष्मी को कृष्णा का पत्नी बोल रहे हैं, वो तो विष्णु का पत्नी है। तो विष्णु इज एन अंश ऑफ कृष्णा। ये मत भूलिए, आदि लक्ष्मी राधा रानी है। तो तत्र श्री, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है राधा रानी। तो राधा रानी आदि लक्ष्मी, हर लक्ष्मी का रूप राधा रानी से निकलता है। सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोलोक में एक नहीं दो नहीं, कोटि कोटि लक्ष्मियां हैं। सो और राधा रानी एक है, और उस राधा रानी इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्णा से लाखों करोड़ों लक्ष्मियां का मतलब प्रभा प्रकाश निकल रहा है। और ये सारे लक्ष्मियां कृष्णा का सेवा कर रहे हैं गोलोक में। तो तत्र श्रीर, देयर इज opulence, देयर इज the the queen of opulence, the provider of opulence, Radha Rani, Lakshmi Devi, Adi Lakshmi, Vijaya. There is going to be victory. Such devotee will always be victorious. Victory means कौन सा victory? शत्रु से, शत्रु से विजय। कौन सा शत्रु? हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु भौतिक जो दृष्टि है, यही हमारी शत्रु है। उस पे विजय पाना, उस क्योंकि उस पे विजय पा लिया तो और कोई शत्रु नहीं रहेगा हमारा। हमारे शत्रु इस भौतिक दुनिया में क्यों है? क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से सब कुछ कर रहे हैं। जब हम आध्यात्मिक प्रगति करके आध्यात्मिक स्तर पे आ जाएंगे तो भौतिक दृष्टि नहीं रहेगा, भौतिक जीवन नहीं रहेगा, तो उस पे विजय हो जाएगा। तो भूतिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, विल बी वेरी पावरफुल। वन हु इज एंग कृष्णा विद हिम, दैट पर्सन मस्ट बी वेरी पावरफुल। ध्रुवा नीतिर, तो अचल दृढ़ नीति, मोरालिटी, सारे अच्छे गुण और अच्छे कार्य वहां पे होता है। मतिर ममा, दैट इज माई ओपिनियन। और लॉजिकली हम देखेंगे तो ये सही है। जहाँ पे कृष्णा है, जहाँ पे भक्त है, जहाँ पे भक्त सेवा कर रहा है, तो क्योंकि अभी पार्थ सेवा करने वाला, धनुर्धरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केवल भक्त बन के वो खड़ा नहीं हुआ है, अभी वो सेवा करेगा। क्या सेवा करेगा? कृष्णा चाहते हैं कि ये युद्ध धर्म युद्ध हो, अधर्मियों का विनाश हो। उनका अवतार का, ऑफकोर्स कृष्णा इज नॉट एन अवतार, कृष्णा केम एज हिमसेल्फ। तो उद्देश्य क्या है? तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थ है। कुरुक्षेत्र युद्ध के माध्यम से एक झटके में वो होने वाला है। उनके जीवन का लक्ष्य एक ही स्थान पे वो परिपूर्ण होने वाला है। सो सो फॉर दैट अर्जुन इज डूइंग सर्विस, धर्म संस्थापन के लिए। अर्जुन, तो हम हमको क्या कौन सा सर्विस करना है धर्म संस्थापन के लिए? प्रभुपाद जी का पुस्तक का वितरण करना है, खुद हमें पढ़ना है, हरे कृष्ण मंत्र जपा करना है, मंदिर में सेवा करना है, साधना करना है, एंड वी मस्ट ब्रिंग पीपल टू द सर्विस ऑफ कृष्णा, टू द लोटस फीट, द शेल्टर ऑफ Srila Prabhupada. We must bring. Easiest way to do is encourage them to chant Hare Krishna mantra. Since we do not have the purity to make them do that, somehow distribute one book to them, small, big, whatever. केवल उसके हाथ में वो पुस्तक जाने से वो मतलब तर जाएगा वो आदमी, उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है।
So whenever we do book distribution, the technique is give the book in his hand and turn the pages for him. Tell him, ये देखिए ये pictures you can show some important, some nice quote. You should know which page you have to go. And you must speak about it. तो जब वो हाथ में पकड़ेगा प्रभुपाद जी का पुस्तक, उसका आध्यात्मिक जीवन मानो प्रारंभ हो गया. दिस इज द टेक्निक. ही मे नॉट टेक, बट आप निमित्त बन गए उसका आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत के लिए. ऑफ कोर्स, if somebody is getting that sukruti, he must be very blessed to even hold Prabhupada's book. कि आपके निमित्त से वो उसको पकड़ पाया, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य उसने किया होगा. और जो लेके पढ़ेगा उसका इस उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होना निश्चित है, पुनर्प्रारंभ होना निश्चित है, ये बोल सकते हैं. सो भगवत गीता बिगैन विथ एन इंक्वायरी बाय धृतराष्ट्र. तो धृतराष्ट्र का प्रश्न से भगवत गीता प्रारंभ हुआ. He was hopeful of victory of his sons. So this is called as दुराशया. अंधा व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा, और दुराशया दुराशा रखना, सारे कुकर्म कर लिए लेकिन फिर भी ये सोचना कि मेरे पुत्र इस युद्ध में विजयी बनेंगे. सामने खड़े हैं भगवान और भक्त, और ये सोचना कि अरे वो तो 5 लोग हैं, एक कृष्णा क्या करेगा, वो तो इस युद्ध में वो कोई शस्त्र भी नहीं उठाने वाला है, क्या करेगा. यही सोच धृतराष्ट्र का था, यही सोच दुर्योधन का था. बट वी ऑल नो व्हाट हैपेंड. सो संजय टोल्ड किंग. तो इस जो गलत फहमी में था धृतराष्ट्र, उसको आखिरी श्लोक में संजय ने मात दे दिया. गलत फहमी में मत रहो धृतराष्ट्र, क्योंकि विजय आपके पुत्रों का नहीं होने वाला है. क्योंकि उस तरफ है भगवान श्री कृष्ण, धर्म का पिता, धर्म रक्षक और उनके भक्त. तो विजय तो उन्हीं का होने वाला है. ध्रुवा तत्र श्री विजया, विजय तुम्हारा. क्यों? वहां पे ध्रुवा नीति, मोरालिटी इज ऑन दैट साइड. सो कृष्णा धर्म को जो रक्षण करेगा उसका रक्षण करेगा. तो आपकी पुत्र तो अधर्मी है, तो उनका इस युद्ध में मौत तैयार है. सो विक्ट्री वॉज सर्टन फॉर द साइड ऑफ अर्जुना बिकॉज कृष्णा वॉज देयर. वेरी सिंपल थिंग. Where there is Krishna, there is victory. Krishna's acceptance of the post of charioteer for Arjuna was an exhibition of another opulence. और कृष्णा यहाँ पे एक और ऐश्वर्य दिखा रहे त्याग का, कि वो एक भक्त के लिए दास बनने के लिए तैयार हो गए. मतलब आप सारथी बन रहे हो. सारथी कौन है? उस जो रथ के ऊपर बैठता है उसका दास है वो. जहां पे बोलता है वो उसको जाना है, जहां रुकना है रुकने के लिए बोलता है रुकना पड़ेगा. और युद्ध भूमि में इतना हल्ला होता है, सुनाई नहीं देता है, तो इंस्ट्रक्शन कैसे देगा? वो तो सामने बैठा है, इतना आवाज आ रहा है. तो अगर उसको बाएं तरफ जाना है तो वो पैर से सारथी को मारता है पीठ पे. तो तब वो सारथी समझता है कि हाँ मुझे अब बाएं तरफ जाना है, मुझे दाहिने तरफ जाना है, मुझे रुकना है. ये सब वो पैरों से बात करते हैं. तो अर्जुन ये कर रहा था. कृष्णा के लिए सारथी है, मैं सारथी सारथी का कार्य कर रहे, तो ये सब उनको अनिवार्य था. सो अर्जुन वॉज किकिंग कृष्णाज बैक, लेफ्ट साइड राइट साइड, आगे बढ़ो, स्लो डाउन, गो फास्टर. जैसे कि एक घोड़े को दौड़ाना है तेजी से, क्या करते हैं? चाबुक से मारते हैं. तो और जोर से दौड़ाना है तो जोर जोर से मारते हैं, बार बार मारते हैं. ठीक वैसे सारथी का पोजीशन होता है. ये पोजीशन कृष्णा इज रेडी टू एक्सेप्ट फॉर हिज भक्ता. दैट्स व्हाई इज कॉल्ड भक्त वत्सला. So he personally comes to fight the battle there, personally coming to be the guide for Krishna there, though he's not holding the arms. So Krishna is full of all opulences and renunciation is one of them, Tyaga. So full of full renunciation, ये एक ऐश्वर्य है. The battle was to decide who would rule the world. तो इस
पृथ्वी का जो राज्यभार है कौन संभालेगा, इसको तैयार करने के लिए युद्ध था। तो संजय प्रेडिक्टेड दैट द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू युधिष्ठिरा। विजय कृष्णा का पक्ष का होगा, पांडवों का पक्ष का होगा, युधिष्ठिर बनेगा राजा। सो सो दिस पर्टिकुलर परपट, लास्ट परपट, 78 श्लोका का परपट है एसेंस ऑफ भगवद गीता, समरी ऑफ भगवद गीता। 18 चैप्टर समरी ऑफ भगवद गीता, एंड द लास्ट श्लोका इज द समरी ऑफ भगवद गीता। सो आपने लास्ट श्लोका पढ़ लिया और उसका परपट ध्यान कर लिया, तो आपको पूरा भगवद गीता समझ में आ गया। सम में प्रोटेक्ट दैट कृष्णा इंसाइटेड अर्जुना टू फाइट। अरे कृष्णा तो अर्जुन को उकसाया युद्ध करने के लिए, विच इज इमोरल। तो ध्रुवा नीति कहाँ आ गया वहां पे? तो ये इमोरल तब होता जब युद्ध अधर्म के कारण पांडव छेड़ते हैं, अधर्म किए कौरवों ने, उसको सही करने के लिए ये धर्म युद्ध चल रहा है और धर्म संस्थापन के लिए युद्ध चल रहा है। सो भगवत गीता इज सुप्रीम इंस्ट्रक्शन इन मोरालिटी। तो नीति का अगर कोई अ, सबसे बड़ा परिभाषा है वो भगवत गीता है। वो क्या है नीति का? नीति क्या है? अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ, ये नीति बता रहे हैं। सहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मतलब यू मस्ट प्ले योर रोल। अर्जुना इज ए योद्धा, तो वो अपना रोल प्ले करेगा। तो उस योद्धा को रथ चाहिए, रथ को प्रिपेयर करने वाला चाहिए, मैन्युफैक्चर करने वाला चाहिए। तो जो बाण है उसको मैन्युफैक्चर करने वाला चाहिए। तो सबको अपना अपना रोल प्ले करना है धर्म में। तो प्रभुपाद जी के मंदिर में कोई पुजारी है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर में, गीता काउंटर में सेवा कर रहा है, कोई स्वीट काउंटर में सेवा कर रहा है, सब लोग साथ में क्या कर रहे हैं? धर्म प्रचार। कोई प्रीचर है, कोई प्रीचर का हेल्पर है, तो आप सब अपने प्रीचर्स को, अपने प्रीचर को आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये भी प्रीचिंग है। ऑल दिस कम्स अंडर सर्विस ऑफ कृष्णा। सो वन मस्ट बी a devotee of Krishna, and the essence of all religion is to surrender unto Krishna. कृष्ण का शरण में जाना, ये धर्म का अ, क्या बोलते हैं, द फाइनल, द स्टेज, और वी कैन से दैट कृष्ण इट्स ऑल्सो द फर्स्ट स्टेज। दैट धर्म मतलब कृष्ण के शरण में जाना। कृष्ण के शरण में जाना मतलब उनके बोधन के अनुसार हमें जीवन बिताना। सो टू फुली सरेंडर टू कृष्णा इज द हाईएस्ट परफेक्शन। तो ये परिपूर्णता है, योग का परिपूर्णता, टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटल योगा एंड द परफेक्शन ऑफ योगा। यू मस्ट हैव रेड दिस बुक्स। व्हाट इज ऑल दैट? भगवद गीता, दैट इज द टॉप मोस्ट योगा टू। भगवद गीता में बोधन क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, फुल सरेंडर टू कृष्णा। सो दैट इज योगा, दैट इज द टॉप मोस्ट योगा। हरे कृष्ण मंत्र जपा क्यों कर रहे? कृष्ण के शरण में जाने के लिए, कृष्ण का शरण लेके, कृष्ण का जपा करके कृष्ण के शरण में रहना है भक्त के माध्यम से। सरेंडर टू कृष्णा इन डिवोशनल सर्विस इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन। राज विद्या क्या है? परम गुह्य। राज विद्या क्या है? यही है, कृष्णा के शरण में आइए, केवल कृष्णा के शरण में आइए। इट इज द एसेंस ऑफ द 18th चैप्टर, और भगवत गीता का सारांश है, 18 अध्याय का वो सारांश है। अनदर फीचर ऑफ भगवत गीता इज दैट द एक्चुअल ट्रुथ इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा। तो परम सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्णा। सो वो परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ इज कृष्णा। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ मीन्स परफेक्ट नॉलेज ऑफ कृष्णा। परम सत्य का अगर ज्ञान चाहिए तो कृष्णा को हमें जानना चाहिए। नोइंग कृष्णा इज नोइंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो कृष्ण गए तो कृष्णा क्या बोलते हैं? तो कृष्णा टेलिंग वन हु नोज दैट माय बर्थ एंड एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो व्यक्ति तत्वता। 4.9, फोर्थ चैप्टर, 9th श्लोका। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी।
इस जन्म के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं थी। किसको? जो कृष्ण के कार्य को और जन्म को दिव्य जान लेता है। तो व्हाट हैपेंस टू हिम? सो ही गोज बैक टू कृष्णा। तो वो कृष्णा के गोलोक परम धाम प्रवेश करेंगे। तो माम एति सो अर्जुना। सो मटेरियल एनर्जी इज मैनिफेस्टेड इन 24 डिविजन्स। हमने सीखा कि 24 उसका क्लासिफिकेशन है मटेरियल एनर्जी का। एंड द क्रिएशन इज अफेक्टेड बाय इटर्नल टाइम। काल के वश में है जो सारे सृष्टि। एंड इट इज क्रिएटेड एंड डिसॉल्व बाय एक्सटर्नल एनर्जी। जो भौतिक जगत है वो कृष्णा के बहिरंग शक्ति से उत्पन्न होता है और नाश होता है। दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड रिपीटेडली बिकम्स विजिबल एंड इनविजिबल। तो आता है जाता है, आता है जाता है, पुनर्सृष्टि होता है, पुनर्प्रलय हो जाता है। In Bhagavad Gita, for five principal subject matters have been discussed. So Prabhupada is summarizing. तो 5 सत्यों के बारे में भगवत गीता में हमें सीखने को मिलता है। क्या है? फर्स्ट वन, पर्सन, सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड, ईश्वरा, कृष्णा। दूसरा, मेटेरियल नेचर, प्रकृति। तीसरा, जीवा, लिविंग एंटिटीज। चौथा, काला, एटर्नल टाइम। और पांचवा, कार्य, कर्मा। तो इनमें से पहले 4, ईश्वरा, प्रकृति, जीवा, काला, ये शाश्वत है, सनातन है। कार्य, which keeps changing, so karma keeps changing, so when I change my activity, my fate will change. तो पहले मैं कुकर्म कर रहा था, अब मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, तो मेरा जो भाग्य है वो बदल जाएगा। सो ऑल दीज however आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। लेकिन सब कुछ कृष्णा के ऊपर अवलंबित है। जीव भी, प्रकृति भी, काल भी और कार्य भी। हम कौन से कार्य करने वाले, इसका भी नियंत्रण कृष्णा ही करते हैं। ही नोस। अभी कृष्ण अर्जुन को मोहित कर दिया, मेड हिम bewildered। कृष्णा ने करवाया, तो भक्त को करवाया, क्योंकि उद्देश्य क्या था? भगवत गीता को वापस पुनर्चेतन करना था। नथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सुप्रीम, but सुप्रीम इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग। सब भगवान के अंदर है, लेकिन भगवान फिर भी प्रत्येक एक व्यक्ति है। इज एन इंडिविजुअल, इज इनकंसीवेबली वन एंड डिफरेंट। तो ये चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदा भेदा तत्व है, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो माना जाता है अचिंत्य भेदा भेद तत्व, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। तो लिविंग एंटिटी इन इज ओरिजिनल पोजिशन इज प्योर स्पिरिट। हम कौन है? आत्मा है, शुद्ध आत्मा। कृष्णा का अविभाज्य, कृष्णा का अंग है हम। द कंडीशन लिविंग एंटिटी however is in the marginal energy of the Lord। लेकिन बहिरंग शक्ति के जकड़ में है, अभी माया के जकड़ में है। बिकॉज ही बिलोंग्स टू सुपीरियर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, ही हैज अ पार्टिकल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्योंकि थोड़ा मान लिए स्वतंत्रता है, थोड़ा बहुत, तो इसलिए कभी हम माया के परवश हो जाते हैं, कृष्णा को भूल जाते हैं। कृष्णा भूलिया जीवा भोग वांछा करे, पाशा ते माया झपटिया धरे। हमारा कहानी ये है, इस माया लोक में क्यों है? क्योंकि माया से प्रेरित होके हम, आकर्षित होके कृष्णा का छोड़ के हम आ गए। So, so when we come across a pure devotee like Prabhupada and go through the instructions like Bhagavad Gita by his guidance, we come back to our original constitutional position of Krishna Bhakti. So, thank you very much for joining me in this journey of Bhagavad Gita. We have concluded the Bhagavad Gita discussion, which went for almost 2.5 years and 262